50 was done, right? 52 करता है, ठीक है. So I will finish this and we'll do more than one correct options also. You can understand what is happening. So question tells you what a block of mass 4 kg is attached to a spring of constant K 32 Newton per meter by a rope that hangs over a pulley of mass 8 kg. If the system starts from rest, find the speed of the block after it has fallen 1 meter. Treat pulley as a disc. Okay. So can I use this formula? Initial kinetic energy plus work done is final kinetic energy, and it has fallen by the height of h. चलो बाबा शुरू हो जाओ. कौन बताएगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हेलो, 0 है ना, ठीक है ना. ये सब सम्स वही है जो पहले हम लोग कर चुके हैं. वी जस्ट पॉलिशिंग एवरीथिंग. सो we'll see. Initial kinetic energy is 0. Work done. चलो शुरू हो जाओ. Work done. mgh. ग्रेविटी ने काम किया mgh. ओके. और हाफ kx स्क्वायर माइनस के प्लस माइनस हाफ के एच स्क्वायर. बिकॉज ये मास नीचे जाएगा एच तो वो भी खींचा जाएगा ना एच. और half I omega square. okay, so that will be final kinetic energy na ye. That will be final kinetic energy of the system. So it will be half I omega square plus half mv square. यहाँ पर आगे इसके पास स्पीड भी है ना. Now this is the whole system which we had done. Now we will multiply by 2. तो ये हो जाएगा 2 mgh minus kh square is equal to I omega square plus mv square. Now we know 2. M is given as 4, gh is given as 1 meter. Minus k is 32, h square I don't know. I moment of inertia of a disc is नहीं, हाँ, पुली का मास कितना है? 8 है ना. h is 1 only, right? h is हाँ, h is 1. Sorry, h we need to find h. h is 1. We need to find v. h is 1. ये हो गया. I कितना है? I what will be I? mr square by 2. by 2. So mr square by 2. तो m into r square. R is given. Is R given over here? Hello. R is given in the question. System starts, find the speed of the block. It reads. R is not given, na? See the question you all have. R is given or what? Okay, ठीक है. R नहीं दिया है तो ठीक है. R को R ही लिखते हैं. By 2. Omega. What will be omega written as? What is the relation between V and omega? देखो ये V से नीचे जा रहा है ना. Hello. by r. Can I say this is omega and this is going down with V? So what is the relation between V and omega? V is v by r. हाँ, तो ये हो जाएगा V by R. तो ये हो जाएगा V square by R square. समझ में आ रहा है क्या? कैंसिल हो जाएगा. प्लस हाफ mv square plus mv square. तो m is given as 4 into v square. This is going to become 8v square. It will become 80 minus 32. V will become 80 minus 32 by 8 root of that. Hello? Yes or no? Baba, tell me. Hello? Yes, sir. ये आंसर कुछ मिल जाएगा आपको. That answer you can see. So this was a simple work energy power question only, which we can do it. Fine. Question number 54 पर आता है.
54th. We'll come to 54th question. ये क्वेश्चन में क्या दिया है? A uniform rod AB of mass 2 kilogram and length 1 meter. So mass of the rod is given as 2 and length is given as 1, is placed on a sharp support O such that A is 0.4 and B is 0.6. You can see in the question is given. The force constant of the spring is 600 Newton per meter attached to the end B. To keep the rod horizontal, its end A is tied with the thread such that the spring is elongated by 1 cm. तो इस पोजीशन में स्प्रिंग के पास x कितना है? 1 cm है. हेलो हेलो, आपको समझ में आ रहा है ना? Okay, when the thread is burnt, what will be the reaction at the support at that instant? So, क्या मैं बोल सकता हूँ स्प्रिंग खींचा हुआ 1 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर kx ऑलरेडी मौजूद है. हेलो 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 हेलो, Yes, sir. अभी ये कह रहा है कि इसको मैंने बर्न कर दिया. इसको अगर हमने बर्न कर दिया तो ये तो चला जाएगा ना, इधर का टेंशन जीरो हो जाएगा. हेलो, तो कैन आई से जो सिस्टम है वो ऐसे बन जाएगा. ये हमारा रिएक्शन है, जो भी हम कहते हैं कि हिंज है, जो भी. कैन आई से ये जो है यहाँ से कौन सा फोर्स आने वाला है? kx. हेलो, फाइन. Yes, sir. अच्छा, और एक चीज है यहाँ पर कि सेंटर ऑफ मास पे क्या एक्ट करेगा? नीचे वेट एक्ट करेगा. कैन आई से यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ इज 1 मीटर एंड a is given as 0.4. This is 0.4. So this has to be 0.6. Can you tell me how much will be this then? ये सेंटर है ना, 0.1 ना. हेलो, इजी तो है ये तो, ठीक है. 0.1 रहेगा, ये भी मिल गया. ये सब चीजें हमने बना लिया. अच्छा, यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको? व्हेन द थ्रेड इज बर्न्ड व्हाट इज द रिएक्शन एट द सपोर्ट. मतलब यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, ये चाहिए ना आपको. हेलो, Yes, sir. मतलब अभी इससे इजी सम नहीं है, इससे इजी सम है ही नहीं हमारे पास. क्या मिलेगा? कैसे करना है? आपको आता है क्या कैसे करना है? ये हम तो लॉज ऑफ मोशन में भी कर चुके हैं. कैसे करना है बोलो? एफ ढूंढने का ना हमारे को, आर ढूंढना है ना हमारे को, आर. तो हाउ टू फाइंड आर? F net is 0 and tau net is 0. एफ नेट इज नॉट जीरो. एफ नेट इज जीरो लॉज ऑफ मोशन में करते थे हम लोग. एफ नेट इज नॉट जीरो. ओवर थोड़ा सी चेंज है बेटा, आप सही सोच रहे, सही हो, बट एफ नेट इज नॉट जीरो. क्या वो कह रहा है? क्या 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 बेटा वो कह रहा है कि डायरेक्टली बर्न किया तो रुक गया रॉड, ऐसे कुछ बोल रहा है क्या क्वेश्चन में? हेलो 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 हेलो, नो ना, they are not telling you anything like this. That means f net is ma and tau net is I alpha. हेलो, am I correct? कुछ आर्ग्यूमेंट है आपके पास? हेलो, f net is not zero, f net is ma and tau net is I alpha. Do you agree with me? Yes, sir. ये होना चाहिए. f net जीरो और tau net जीरो कब रहेगा? जब वो स्ट्रिंग काटने के बाद खुद ही रेस्ट पर आ जाए. वो कह रहा नहीं है कंडीशन में, कंडीशन में कुछ नहीं कह रहा है ऐसे. कंडीशन में तो ऑलरेडी अनबैलेंस फोर्स मौजूद है बेटा. ये अनबैलेंस फोर्स मौजूद है तो ये अनबैलेंस फोर्स तो उसको नीचे खींचेगा ही. चलो चलो चलो, एक काम करते हैं, मैं सबसे पहले एफ नेट इज एम ए लिखता हूँ. चलो, एफ नेट इज एम ए कैसे लिखेंगे? एफ नेट कौन है? नीचे नीचे कौन है? नीचे दोनों में नीचे कौन है? कम ऑन मैन, हेल्प मी आउट. mg plus kx minus r. mg plus kx minus r is m into a कॉम. हेलो, a कॉम कॉम कॉम. हेलो, a कॉम ये है ना. Are you there? Are you there? Are Yes, you sir. there? हाँ, ये कर चुके हैं हम लोग लास्ट टाइम. हाँ, अब कैन आई से tau net is I alpha. Tau net is I alpha. अच्छा, tau net ने निकालो. tau net mg into 0.1 torque plus about O. net torque about O निकालने का है तो कैसे निकालेंगे? mg into 0.1 plus kx into 0.6. हेलो, yes or no?
Yes, sir. तो ये टाउ नेट आपको मिल जाएगा। एम जी देखो ना, वैल्यू वैल्यू कितना है, एम का कितना है 20, तो ये 20 इंटू 0.1 प्लस के 600 इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 0.6, ये तो 2 हो गया, कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3.6, तो ये हो जाएगा 5.6 न्यूटन मीटर। हेलो बोलो भैया, यस और नो, यस और नो, यस और नो। हेलो भाई बोलो, करेक्ट है क्या? अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आराम से आराम से। कैन आई से टाउ नेट इज नथिंग बट व्हाट? I alpha. अल्फा ढूंढना जरूरी है। तुम लोग बोले सर अल्फा क्यों ढूंढना जरूरी है? भाई थोड़ी देर पेशेंस रखो, अल्फा ढूंढना जरूरी है। टाउ नेट कितना है? 5.6 है। कोई बता सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा अबाउट दिस पॉइंट? हेलो यार बोलो ना। ml²/12 प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ना। हेलो Yes, sir. तो ml²/12, तो m कितना है 2 है, l² इज 1/12 प्लस मास कितना है, मास इज 2 इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है सेंटर से? 0.1 है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन का। ये कितना हो जाएगा, m इंटू 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर। हेलो इंटू अल्फा बराबर है क्या भाई? Yes, sir. तो अल्फा यहाँ से आपको जो मिलेगा, तो देखो ना कितना मिलेगा, 0.6 बाय कितना होता है 2/12, दैट इज 1/6 प्लस 0.02, इसका आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हेलो हेलो, इज माय वॉइस क्लियर? बिकॉज आई Yes, sir. चेंज द हैंडसेट, दैट्स व्हाई। चलेगा ना बेटा? ये समझ में आ गया, ये अल्फा मिला। अब ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। अभी इस इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन है? चलो इस इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? अब आ गया आंसर, आ गया आपको। बोलो जल्दी जल्दी बोलो, क्या क्या करना है K बेटा? is equal to R alpha. हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? ए कॉम इज आर इंटू अल्फा, तो अल्फा तो यहां से लिया गया ना बेटा, तो व्हाट बी द वैल्यू ऑफ आर? व्हाट बी द वैल्यू ऑफ आर? जो आर अल्फा की आप बात Point कर रहे हो, one. 0.1 रहेगा। ये तो सब सेम ही रहेगा यार। एम जी इज 20 प्लस के एक्स विल बिकम 6 माइनस आर इज एम इंटू एम इज 2 इंटू 0.1 इंटू अल्फो। हेलो हेलो हेलो, यस और नो? तो यहाँ से आपको आर मिल जाएगा इन न्यूटन। आर यू ओके विद दिस इक्वेशन? यस सर? यार बोलो ना तुम लोग, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके सो दिस इज हाउ यू डू इट बाय द Yes, sir. वैल्यू ऑफ आर। ओके, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप जो लॉज ऑफ मोशन में करते थे, जैसे वन स्टूडेंट टोल्ड मी, सॉरी आई डोंट नो द नेम बिकॉज स्क्रीन इज देयर इन द फ्रंट, तो उधर क्या अप्लाई करते थे हम लोग? टाउ नेट इज 0 एंड बेटा एफ नेट इज 0, याद है ना? हेलो रॉड वाले सम्स में। बट यहाँ पर सिंस स्टार्टिंग में ही एक अनबैलेंस फोर्स है, ये तो ये वाला अप्लाई करना पड़ेगा and then you will get the sum. Did you understand the difference? Did you all get the difference? Yes or no? Clear hai? So, but what is the significance of that thread? Nothing. Nothing significance of the thread. See, because of this burning, यहाँ पर एक impulse act करेगा। हेलो ये देखो, यहाँ पर क्या था कि kx को बैलेंस था ना, यहाँ पर ये थ्रेड इसके अंदर टेंशन आ रहा था, इसलिए वो बैलेंस कर रहा था उसको। ऐसे था ये पहले, this was getting pulled, so obviously the kx was pulling him down। बराबर है? हेलो Yes, sir. because of this tension was balancing this kx, the net force was 0। हेलो getting it? ये जो चीज थी So वो when the string was there and the string was cut, R has changed. obviously yes it has changed, obviously yes it has changed because tension आधा टाइम सपोर्ट कर रहा था ना बेटा। सी सी सी, Yes, sir.
ये r डैश था, तो कैन आई से r डैश प्लस r डैश वाज इक्वल टू t प्लस kx, ऐसे लिख सकता हूं मैं? हेलो हेलो, plus mg. हाँ प्लस mg ऑल्सो, ये भी mg भी आ जाएगा, दैट इज देयर। ओके, रिएक्शन विल ऑब्वियसली बी चेंजिंग ना, तो हम पहले भी कर चुके हैं, बिकॉज इट इज अ एक्सेलरेटेड मोशन ना, तो हर पॉइंट पे चेंज होगा बेटा। गौतम Yes sir, got it. भाई, ऐसे टेढ़ा भी हो गया तो भी चेंज होगा ना रिएक्शन तो। Yes sir. ये सम था शायद सॉल्ट एग्जांपल में, लास्ट टाइम हमने किया था, मैंने बताया था आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55th पर आता है, दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन। 55th एंड 56th एंड 58 क्या कहना चाह रहा है? सिलेंडर ऑफ मास 2 किलोग्राम एंड रेडियस 0.1 मीटर इज प्लेस्ड सच दैट इट इज इन कांटेक्ट साइमल्टेनियसली विद द वर्टिकल सरफेस and a horizontal surface is shown in the figure. For the both surfaces, the coefficient of static friction is 1/3. Find the distance d from the center of the cylinder at which a force 40 Newton should be applied so that cylinder just starts rotating in the anti-clockwise direction. Okay, ठीक है। अब ये क्या बोला है? फोर्स ऐसे अप्लाई करो ताकि ये जो सिलेंडर है वो इट शुड जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग। जस्ट स्टार्ट रोटेटिंग इन विच डायरेक्शन बेटा? कौन से डायरेक्शन में? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप इमेजिन करो बेटा, अगर आप फोर्स लगाएंगे और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शन किधर किधर आएगा? दोनों सरफेसेस पे फ्रिक्शन है बच्चा। हेलो यार बोलो बेटा, फ्रिक्शन इधर भी है। फ्रिक्शन बोलेगा मैं आपको जाने नहीं दूंगा, यस और नो? हेलो, Yes sir. ये फ्रिक्शन है दोनों। तो अगर वो ऐसे घूमना चालू करता है तो ये दोनों फ्रिक्शन तो उस घूमने को अपोज करने वाले हैं। हेलो, यस और नो? बाबा हेलो, यस और नो? क्लियर है? अच्छा, ये यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो N2 पकड़ते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू N2, एंड यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है वो N1 पकड़ते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू N1। हेलो, इतना समझा गया? हेलो हेलो, ये तो इजी है ना यार, गेटिंग इट Yes. और नॉट? और वेट उसका नीचे ही एक्ट करेगा, वेट उसका नीचे ही एक्ट करेगा, दैट इज ऑल्सो ये mg है। यहाँ पर अगर मैं बनाने जाऊँ ये पूरा N2, ये म्यू N2, ये N1, ये म्यू N1, ये mg और ये f, और उसको घूमना ऐसे है। ओके, ही वांट्स टू रोटेट इट this way. Are you understanding what am I telling you? Hello, same sum is question number 53, same sum it is। चलो अब, और दीवार है, दीवार भी बना लेता हूँ यहाँ पर दीवार। ओके, दिस वॉल आई विल मेक इट ओवर हियर, ग्राउंड। ओके, एंड दे आर आस्किंग यू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये डिस्टेंस मांगता है ये। तो ये एफ है मेरा। अच्छा, इट जस्ट स्टार्ट्स रोटेटिंग मतलब क्या? लिमिटिंग कंडीशन है ना? हेलो, Yes sir. मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब टाउनेट को जीरो ही पकड़ना है ना? हेलो, एट दिस इंस्टेंट इसे थोड़ा ज्यादा होगा तो टाउनेट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? हेलो हेलो हेलो, मैं क्या सिखा Yes रहा हूँ? sir. सबको समझ में आना चाहिए यार, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो कैन आई से एफ इनटू डी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शुड बैलेंस होम। चलो बोलो जल्दी जल्दी, ये कौन बैलेंस करेगा? जल्दी जल्दी बोलो, कम ऑन। अबाउट द सेंटर लिया है मैंने, अबाउट द सेंटर, टॉर्क अबाउट सेंटर। हेलो, और Mu कौन? N1 R.
म्यू n1 प्लस म्यू n2 into r. हेलो बोलो, यस और नो? अरे भाई बोलो, करेक्ट है, Yes, sir. होना ही चाहिए. यहाँ से डी मिल जाएगा, खत्म हो गई कहानी. कर सकते हो आंसर? हेलो यार, वैल्यू वैल्यू डालने का काम तो आप लोग का है यार. म्यू कितना है? 1/3 दिया है. हेलो, ओके. एफ कितना दिया है? 40 न्यूटन. गेटिंग इट? n1 और n2 कितना है? हाउ मच इज n2 इक्वल टू? n1 n2 दिया है क्या इधर क्वेश्चन में? No, sir. ओके, अभी n1 n2 ढूंढना पड़ेगा. चलो n1 n2 कैसे ढूंढेंगे? n1 n2 कैसे ढूंढेंगे बताओ, एकदम आसान है. ओके हेलो. F plus mg minus mu n1 f प्लस mg डाउनवर्ड, f प्लस mg डाउनवर्ड इज इक्वल टू mu n1 plus n2. म्यू n1 प्लस n2. ये एक इक्वेशन मिला बराबर. तो f तो 40 है, mg 20 है, म्यू कितना है? 1/3 n1 प्लस n2. इक्वेशन 1 पकड़ते. और कैन आई से अप इज डाउन, लेफ्ट इज राइट, लेफ्ट इज राइट, लेफ्ट इज राइट, लेफ्ट इज राइट में कौन कौन मैच करेगा? n1 equal to mu n2. n1 is mu n2. तो n1 is 1/3 n2. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? हेलो, मिलेगा ना? हेलो, और इस वैल्यू में डाल दो, यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग. हेलो बाबा, हेलो, यस और नो? Yes, sir. सो आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट थिंग. ये देखो, when it just starts rotating, tau net should be greater than, little greater than 0, but मैंने यहाँ पे limiting condition पकड़ लिया है. मतलब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट शुड बिकम इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट. इधर से आपको डी मिल गया, डी मिल गया एक बार. और कैन आई डू अप इज डाउन, लेफ्ट इज राइट, अप इज डाउन, लेफ्ट इज राइट? क्योंकि इसको तो सिर्फ घुमाना है ना क्वेश्चन में, इसको चलाना थोड़ी है. हेलो, इस क्वेश्चन में ये खाली बोल रहा है घूमने का है. इट डजंट वांट टू मूव इट. सो इफ डजंट वांट टू मूव इट, दैट मीन नेट फोर्स इज जीरो ना. हेलो, Yes, sir. okay, so this will be the case how you do the sum. Question number 56. Look over here carefully. A uniform 50 kilogram pole ABC of length 6 meters is balanced in the vertical position. See the figure. A 500 Newton horizontal force is suddenly applied at B. Okay. If the coefficient of kinetic friction between the pole and the ground is 0.3, determine the initial acceleration of point A. So I need the acceleration of point A at the instant when it starts. सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड अल्फा निकालना पड़ेगा. हेलो, आपको समझ में आ रहा है क्या? सपोज सेंटर ऑफ मास इधर है, ये सेंटर ऑफ मास इधर है, तो कोई बता सकता है ये 500 न्यूटन के कारण सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा? राइट के लेफ्ट की तरफ जाएगा. एक्सेलरेट कहाँ करेगा? एसी कहाँ रहेगा? ए कॉम कहाँ रहेगा? जल्दी जल्दी बोलो. Right. ऐसा रहेगा. दिस विल बी ए कॉम. This will be a com. And how will be the alpha due to that 500 above the center? Anti-clockwise. ये अल्फा है. इतना समझा क्या? अब पूरा जोर आपको जो लगाना है ना, वो ए कॉम और अल्फा ढूंढने पे लगाना है, बाकी आपको आ जाएगा. हेलो, डिड यू गेट इट? डिड यू अंडरस्टैंड? यस और नो? क्लियर है? तो यहाँ पर फाइन. सो आई विल स्टार्ट विथ द कंडीशन. कैन आई से अलोंग द वाई एक्सिस एफ नेट इज जीरो, मतलब अप इज डाउन. तो यहाँ से तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ना, तो यहाँ से फ्रिक्शन भी तो आएगा. कैन आई से एम जी
n will become mg. m is 500. x एक्सिस में क्या बोल रहा है? 500 minus mu n, friction is mu n, is equal to m into a com. हेलो 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 यार बोलो. तो a Yes, com क्या sir. हो जाएगा? 500 minus mu is given as what? 0.3 into n is 500 by 50. यहाँ से a com मिला आपको. क्या मिला देखो ना? 500 7. 550 हो जाएगा 1 minus 0.3. ये हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये a com मिल गया. सही है ना? हेलो. अब अल्फा ढूंढने का. अल्फा तो अल्फा ढूंढने के लिए कैसे ढूंढना पड़ेगा? टाउ नेट इज आई अल्फा. सबसे पहले टाउ नेट ढूंढ लो. टाउ नेट अबाउट द सेंटर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज टाउ नेट अबाउट द सेंटर? अरे भैया बोलो. यस और नो? 500. 500 into 1. 500 into 1 Minus हाँ माइनस क्या? म्यू एन into 3. इंटू 3. सही है. बिकॉज सेंटर है ना. ये सेंटर पे ले रहे हैं ना हम लोग. अबाउट द सेंटर ले रहे हैं ना हम लोग. हेलो. Are you getting it? This is 1 500 into 1 and that is 3 only. Now this is 3 in the midpoint. कितना हो जाएगा ये? I am mistaken. n कितना है? 500 है. तो टाउ नेट कितना आएगा यहाँ से? ये 3 है. 3 कैंसिल हो गया. n का वैल्यू 500. 0.3 है ना ये. But is mu is not 1/3. Oh sorry, it is 0.3. So this answer will come. You're gonna 500 common लिया. 1 minus 0.9. That will become 50. Hello, are you there? What is tau net का value? I alpha. So 50 is going to become I. What will be I? I. ml square by 12. ml square by 12. So we are considering the center about. So tau net is about the center only, na? So ml square by 12. So 50 L square by 12 into alpha. ये कैंसिल. 12 3 तो ये अल्फा का वैल्यू कितना आ गया आपको? 1/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड. हेलो. इतना समझा आप लोग को? भाई इतना समझा सब लोगों को? Yes, sir. अब हम लोग ए की बात करते हैं बेटा. ए पॉइंट की तरफ देखो. ए पॉइंट जो है ना वो इधर है. देखो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है. सेंटर ऑफ मास के पास ए कॉम है और अल्फा है ऐसे. ठीक है. ये सेंटर ऑफ मास है. अब कैन आई से पॉइंट ए वो आगे तो बढ़ेगा ही ए कॉम से बिकॉज पूरा रिजिड सिस्टम है. हेलो 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 हेलो. Yes, sir. कैन आई से विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास it will go in circular motion also? Can I say it will let this distance be L? So can I say it will be L alpha also? Hello हेलो. तो आगे भी बढ़ रहा है ए कॉम के कारण. ये समझा आप लोग को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? Yes, sir. देखो मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूं. अगर ये आपको नहीं समझता है तो कैन आई से एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए will be acceleration of A with respect to center of mass
प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये याद है आप लोग को? हेलो हेलो हेलो, ये याद है सब लोगों को? याद है ना? सो Yes. एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर ऑफ मास को रोक दो, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट तो गोल पीछे घूमने वाला है ना। सेंटर ऑफ मास को अगर मैंने रोक दिया तो कैन आई से इसका अल्फा तो ऐसे है, तो ये पॉइंट तो आर अल्फा से पीछे जाएगा, और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये है। आर यू गेटिंग इट? दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, आर यू गेटिंग इट? हेलो Yes, sir. भाई कुछ भी नहीं है यार, क्या प्रॉब्लम है? यस और नो? क्लियर है ना? एकदम आसान है। तो कैन यू टेल मी एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी ए कॉम माइनस आर अल्फा, ए कॉम माइनस आर अल्फा ना, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो साइन तो लेना ही पड़ेगा ना। एक्चुअली तो प्लस हो रहा है यहाँ पर, बट साइन के कारण तो प्लस माइनस यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज ए कॉम का वैल्यू गिवन? 7 लिया। आर कितना है बेटा? आर कितना है? 3 है। और अल्फा कितना मिला? 1/3। ये तो कैंसिल हो गया, तो 7 - 1 6 मीटर per second square. So can I say this point is going to go forward with 6 meter per second square? Are you getting it? अरे भाई बहुत मजेदार एडवांस का क्वेश्चन है, yes or no? Yes, sir. So this is the answer. Hello यार, hello, getting it? Getting it sir, बोलो। क्लियर है ना? रोटेशन sir. मोशन इतना टफ नहीं है, इट इज जब मिक्सचर ऑफ लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कभी कभी पूछ लेते हैं। आपको समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था पहले साल में? कि जब हम लोग रोटेशनल मोशन करेंगे तो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। अरे भाई रिवाइज हो रहा है ना सब? ओके Yes, sir. 58 पर आता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सिंगल करेक्ट, देन आई विल गो टू मल्टीपल करेक्ट, एंड मल्टीपल करेक्ट ही होगा आज। ओके, before vacation we'll try to finish rotational motion. A wedge is in the form of equilateral triangle is placed on a rough horizontal surface as shown on the figure. For what value of coefficient of friction can the block topple without sliding? टॉपल करना है, टॉपल करने के लिए क्या ज्यादा होना चाहिए? इसका टॉर्क ज्यादा होना चाहिए। हेलो, यस और नो? Yes, sir. अच्छा कोई बता सकता है जब ये टॉपल करेगा तो कौन से पॉइंट पे टॉपल करेगा? भाई बोलो। S. क्यों एस पे? तो नॉर्मल रिएक्शन किधर आके खिसक जाएगा? टॉपल करने के एज पर, टॉपल करने के टाइम पर, कैन आई से इधर आ S. जाएगा ना? हेलो एवरीवन नोज, हाँ एवरीवन नोज, नाउ डोंट टेल मी प्लीज। फ्रिक्शन तो यहाँ पर ही है, ये फ्रिक्शन है, सही है भाई? अच्छा, इट इज नॉट स्लिपिंग, दे आर टेलिंग यू इट इज विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग मतलब कौन ज्यादा है कौन कम है? कौन ज्यादा है कौन कम है? अरे भाई स्लिपिंग नहीं हो रहा Is है। more than F. हाँ इट इज नॉट, हाँ तो कैन आई से फ्रिक्शन इज मोर ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू एस एम जी शुड बी ग्रेटर देन बड़ो एफ। हेलो हेलो यार मेरा साथ में तो प्लीज बोलो। ये Yes, कंडीशन sir. तो सही है, ये कंडीशन तो सही है। अच्छा अब टॉपलिंग हो रहा है, विल बी टॉपलिंग करते हैं। टॉपलिंग अबाउट विल कंसीडर पॉइंट एस, तो यहाँ कैसे कैन आई से एम जी है, एम जी है, और ये ठीक है। तो कैन आई से टॉपलिंग करने के लिए द टॉर्क ड्यू टू बड़ो एफ should be greater than या equal to on the verge of toppling will become torque due to mg about which point? S. s ना? अरे इतना सी थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा टॉर्क ड्यू टू एफ क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बाबा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? ये हाइट है ना, कैन आई से विल बी √3/2 टाइम्स ऑफ द साइड। अरे भाई बोलो यस और नो? Yes, sir. √3/2 टाइम्स ऑफ साइड, साइड को ए पकड़ लो, ठीक है? सो इट विल बी एफ इनटू √3/2 टाइम्स ऑफ द साइड should be greater than mg, तो mg into क्या?
साइड को मैंने a पकड़ा है, a/2 mg into a/2, तो a/2 तो वैसे ही कट गया, तो कैन आई से f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू भी ले लेते हैं, विल बिकम mg by √3। हेलो, ये फोर्स है, फोर्स इज ग्रेटर देन दिस। अब क्वेश्चन में अभी ये दोनों कंडीशन मेरे को मिल गए। अब कह रहा है ब्लॉक टॉपल पहले कर रहा है, स्लाइड बाद में कर रहा है, विदाउट स्लाइडिंग कर रहा है। तो कैन आई से दिस कंडीशन इफ इट इज ओबेड without sliding, that means mu s mg should be greater than f, but f का वैल्यू हमने लिमिटिंग कंडीशन में कितना निकाला, इतना निकाला ना बेटा। हेलो, yes sir देखो ना भाई, विदाउट स्लाइडिंग का कंडीशन है, f का वैल्यू हमने कितना निकाला है, इक्वल टू पे mg by √3 निकाला, mg और mg कैंसिल हो गया, तो mu s should be greater than what, 1 by √3, yes और no, इक्वल टू भी आएगा, इक्वल टू कंडीशन पे कर रहा है, yes और no। yes sir आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग है। ये पहले टॉपलिंग में कर चुके हैं हम लोग ये चीज, टॉपलिंग बिफोर स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग बिफोर टॉपलिंग, इट इज गिवन इन द सॉल्व्ड एग्जांपल्स आल्सो। सो प्लीज प्लीज प्रैक्टिस करो यार, मैं हर वीक इसलिए 25 सम करा रहा हूँ, स्मूथली हमारा पोर्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको हर हफ्ते 25 सम करना है। हेलो, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? 25 सम तो कर सकते हो ना हर हफ्ते, हेलो, उससे ज्यादा करना है बट 25 सम कर सकते हो सब लोग। yes sir हाँ भाई, इसको 2-2 3-3 बार है ना, आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि ये टाइप का सम ऐसे ही करना है। ओके, एक बार ये चीज हो जाती है ना, फिर बाद में आप लोग दूसरा कोई बुक उठा सकते हो, बट यू शुड नो हाउ द टाइप्स ऑफ द सम शुड बी डन। मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस पे आता है। I'll do the first question. I think how many questions are there? There are 14 questions. कुछ questions I'll be doing. Time कितना है? I wait ऐसा time तो है हमारे पास. A mass m is rolling horizontally without flipping. Then it rolls up to height this much. अरे बहुत अच्छा question है, देखो इधर. Easy वाला है, ये मेन टाइप का question है. तो can I say इस height पर चढ़ गया वो. ऐसे रोल कर रहा था और रोल करते करते ऊपर चढ़ गया। ओके, द बॉडी कौन सी बॉडी है बोल रहे हैं? अच्छा, विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू विच एनर्जी? हेलो यार, कुछ नहीं है इसमें तो बोलो तो जल्दी जल्दी। ke to p के ई व्हाट? रोलिंग। हेलो, व्हाट इज के ई रोलिंग का फॉर्मूला याद है? ये 1 plus k square by r square mgh, बट h कितना दिया है देखो क्वेश्चन में, 3/4 ऑफ v स्क्वायर बाई g दिया है। यस और नो सर? हेलो 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 हेलो, यस और नो? ये m 2 2s are 4, v स्क्वायर कट गया, g कट गया, यस और नो? तो 1 plus k square by r square is कितना आया? 3/2 3/2। तो k square by r square कितना आएगा? अरे बोलो यार। हाफ आया, हाफ आ गया। कोएफिशिएंट किसका हाफ होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में? mr square mr स्क्वायर बाय 2 किसका होता है? डिस्क का होता है, किसका होता है? सिरिंग का होता है, किसका होता है? डिस्क डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। हेलो, अरे भाई बोलो, yes sir सही है ना? सॉलिड स्फीयर तो नहीं हो सकता है। The moment of inertia of the body about instantaneous axis of rotation. Can anyone tell me what is instantaneous axis of rotation? ये मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। Instantaneous axis of rotation कहाँ होता है, कहाँ होता है? point of contact पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब इधर अगर mr स्क्वायर बाय 2 है तो इधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? जल्दी बोलो यार। 3/2 mr square ये भी आंसर सही है और ये रॉन्ग है, सही है ना? हेलो हेलो यार बोलो ना, क्लियर है ना? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सर आई एम नॉट yes गेटिंग sir एनीथिंग। हाँ यार, दूसरे लोग को समझ में आ रहा है क्या रोटेशनल मोशन? आखिर चैप्टर है बेटा, लास्ट चैप्टर है मैकेनिक्स का। यस सर। जयदीप, अनन्या। यस सर। हाँ बेटा। कनिश, यस सर yes sir यस सर पूरा पूरा
Purav is not there only. Kunal. Yes, sir. Okay. ठीक है, तो बेटा रोटेशनल मोशन खाली थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको, लोग को सब आता है, ठीक है। और अगर आप लोग एचसी वर्मा प्रैक्टिस करते हैं तो एचसी वर्मा का सॉल्यूशंस भी मैंने आपको भेज दिया, उसका जेरोक्स भी निकाल के रखा है क्लास में, बट अभी क्लास बंद हो चुकी है तो वी कैन नॉट डू एनीथिंग, ऐसे हो गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सब लोग मेरी बात सुनो। अच्छा, आपको मालूम है रोलिंग कंडीशन का क्या मतलब है? रोलिंग का जमीन पे रोल करेगा मतलब क्या होता है? VCM इज आर ओमेगा। हेलो 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 हेलो। अच्छा, मगर अगर कन्वेयर बेल्ट पे रोल करेगा इसका क्या मतलब है? अरे यार बोलो, कन्वेयर बेल्ट पे अगर कोई चीज रोल कर रही है मतलब क्या? the velocity हाँ, वेलोसिटी एट द बॉटम have मोस्ट to be पॉइंट इन द equal. कन्वेयर बेल्ट शुड बी सेम, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, सही है ना? देयर शुड बी नो स्लिपिंग एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कंडीशन है यार रोलिंग का। हेलो 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 यार, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? हेलो, यस और नो? ओके, चलो इधर देखो। तो कह रहा है कि सिलेंडर रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग एज शोन इन द फिगर। बॉटम का स्पीड कितना है कन्वेयर बेल्ट का? 2 कन्वेयर बेल्ट है, ऊपर वाला और नीचे वाला। हेलो हेलो, यस और नो? कोई बता सकता है बॉटम का स्पीड कितना है? 3v। 3v. एंड पीछे का स्पीड, ऊपर का वाले का स्पीड कितना है? v है। मैं एक काम करता हूं, अजम्पशन पकड़ता हूं कि ये v कॉम है, और ये ओमेगा है, चलेगा ना? अरे अज्यूम किया भाई मैंने। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बॉटम का स्पीड क्या हो सकता है? क्या हो सकता है यार, सबको अभी बताया था मैंने, क्या बोलेंगे? 3v. कैन आई से v कॉम माइनस आर ओमेगा शुड बिकम 3v? अरे इस पॉइंट और इस पॉइंट का स्पीड सेम होना चाहिए ना यार। हेलो, अच्छा टॉप के स्पीड का क्या बोलेंगे आप लोग? टॉप के स्पीड का क्या बोलेंगे? टॉप पॉइंट का क्या बोलेंगे? V com plus r omega is equal to v. v। सही है, हो गया आंसर, खत्म, अभी सॉल्व कर लो। सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू स्पीकिंग। ये दोनों को ऐड मार दो, ये ऐड कर दिया तो ये उड़ गया। ये कितना हो गया? 2v कॉम इज इक्वल टू 4v। v कॉम कितना होता है? 2v। हेलो, यस और नो? Yes, sir. तो आर ओमेगा कितना हो जाएगा? अगर पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2v माइनस आर ओमेगा इज इक्वल टू 3v। सो आर ओमेगा विल बिकम Minus v. माइनस v। ये भी मिल गया सर। चलो अभी, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये भी मिल गया। तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा? यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा? Minus v by r. माइनस v बाय आर। इसका मतलब क्या, जो ओमेगा मैंने पकड़ा है वो ओमेगा उल्टा है. उल्टा है। हाँ हाँ भाई हाँ, मतलब एक्चुअल कंडीशन ऐसे है, ये है और ये है 2v, और ओमेगा ऐसे है, सही है? तो ही सेटिस्फाई करेगा वो, तो ये रोल भी करेगा जमीन पे। सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट आर यू डूइंग? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग है। द सिलेंडर इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर इज v बाय r। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, सही है ना? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2v। यस और नो बाबा? यस Yes, और नो? sir. हाँ भाई, ये हो चुका। चलो 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 चलो, अब आते हैं 5वें नंबर की तरफ। मैं आपको थोड़ा, भाई मैं फास्ट तो नहीं जा रहा हूँ ना? हेलो, No, sir. हाँ भाई, ओके, तो ध्यान रखो भाई प्लीज। चलो मजा आएगा। A uniform rod of mass 2 kg and length 0.5 meter is sliding on two mutually perpendicular smooth walls with two ends having velocity vp and vq shown. Then angular velocity of the rod is counterclockwise. क्या मैं कर सकता हूँ? angular velocity कैसे ढूंढते हैं? किसी को आता है क्या? हेलो, V relative upon length. हाँ, v relative upon length, बट हमको थीटा मालूम है क्या? गौतम, थीटा वीटा मालूम है क्या? यहाँ पे थीटा मालूम है? हेलो, So you can assume हाँ, यू कैन
You can assume. Hello. The velocity along the rod is the same. हाँ, velocity along the rod is the same. तो अल्फा और बीटा पकड़ना पड़ेगा मुझे, ठीक है? ये अल्फा पकड़ता हो, So theta and 90 minus theta. ये भी कर सकते हैं. ये अल्फा पकड़ता हो और ये 90 माइनस अल्फा पकड़ता हो. चलेगा? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. मैं एक्चुअली दूसरे कॉन्सेप्ट से कराना चाह रहा था. ये कॉन्सेप्ट आपको आता है तो मैं दूसरे कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ बेटा. हेलो. ये कॉन्सेप्ट आप लोग को आता है ना यार, ओमेगा इज वी रिलेटिव बाय आर एंड वी अलोंग द रॉड इज द सेम. हेलो, ये आता है ना आप लोग को? Yes, sir. तो मैं आपको दूसरे मेथड से बताता हूँ. सबको मालूम है एट दिस इंस्टेंट अगर मैं आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाऊं तो इधर किधर बनेगा? याद है मैंने आपको बताया था. कैन आई से अबाउट दिस पॉइंट इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा. आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. अरे भाई ये बताया था ना मैंने लास्ट टाइम. आप लोग वो मेथड से भी कर सकते हो. अलोंग द रॉड इज द सेम एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड बाय आर बाय एल यू विल गेट द ओमेगा. क्या मैं सही हूं ये चीज के लिए? बोलो भाई. ओके, हेलो. कैन आई कॉल दिस एज R1 and can I call this as R2? Can I say VQ at this instant is R1 into omega? हेलो. हेलो भैया. yes or no? यार कुछ आना बोलो. yes or no? Yes, sir. 4 will become equal to VP will become equal to R2 into omega because this is instantaneous axis of rotation बाबा. तो ये VP कितना है? 4 है. 4 R2 into omega. ये भी मिल गया. इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन नंबर 2. अच्छा, आपको लेंथ ऑफ द रॉड दिया है क्या बेटा? हेलो, लेंथ ऑफ द रॉड दिया है क्या? Yes, sir. हाँ, तो लेंथ ऑफ द रॉड से क्या निकालेंगे? अगर हम थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ? कैसे बोल सकता हूँ? कैन आई से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज व्हाट बच्चा? हेलो. 4. इस 0.5 का स्क्वायर ना, L स्क्वायर ना. हेलो. हेलो हेलो हेलो. बोलो भाई. हेलो, आर यू देयर? आई ऑल देयर? आई ऑल देयर? यस और नो? तो R1 की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? 3 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5. 0.5 मतलब हाफ का स्क्वायर. हेलो, को समझा गया? Yes, sir. तो क्या हो गया ये? ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होता है 5 स्क्वायर. सही है ना? हेलो. कितना हो गया ओमेगा स्क्वायर? 100. 12. सही है क्या? Yes, sir. 10 रेडियन पर सेकेंड काउंटर क्लॉकवाइज. सबको समझा गया बात? सेकंड वाला रॉन्ग है. हेलो हेलो हेलो. अनन्या, आर यू देयर बेटा? Yes, sir. चलो, Ananya will answer now. Ananya beta, how will I get the C answer? What is the velocity of center of mass at this instant? Can I say velocity of the center of mass will become R into omega? अरे भैया, yes or no? हेलो हेलो हेलो. Yes, sir. सर्कल में जा रहे हैं ना बेटा. So can I say V com will become R into omega? अभी एक टास्क है R फाइंड करने का. गौतम बताओ R कैसे ढूंढेंगे? गौतम बेटा, R के बारे में बताओ. अच्छा, उसके लिए R1 ढूंढना पड़ेगा. Yes or no? हेलो. देखो ना, Yes, sir. ये ऐसे है. ये क्या है? R1 है और ये R है ना. हेलो, ये क्या है? L/2 हो जाएगा ना. 1/4. R1 कितना है? R1 ओमेगा तो मालूम है ना 10. ओमेगा अगर मालूम है 10 तो R1 कितना मिला? 0.3. Yes, sir. हेलो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं है कुछ, तो समझ में नहीं आएगा. ठीक है, ये हो गया. तो R का वैल्यू मिल जाएगा आपको. व्हाट स्क्वायर प्लस व्हाट स्क्वायर इज व्हाट स्क्वायर? 1/4 square plus R square is 0.3 square. So 0.3 स्क्वायर इज 1/4 का स्क्वायर मतलब 0.25 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. समझा गया? तो R स्क्वायर विल बिकम 0.3 माइनस 0.25. 0.3 प्लस 0.25. हेलो हेलो.
Yes, sir. ये आर मिल गया, और एक बार आर मिल गया तो वी कॉम तो मिल ही जाएगा ना भाई। नहीं समझा रहे, नहीं समझ रहे, हेलो, समझा? यस और नो, क्लियर है? तो ये मीटर पर सेकंड है। इस मेथड से इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा था क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट आपको ओमेगा का काम नहीं लगेगा, आपको ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का काम लगेगा। हेलो, ये मेथड ये सॉल्व कर देगा आपका, ये जो चीज है ना ये सॉल्व कर देगा। अच्छा लास्ट पॉइंट, ये मिल जाएगा आपको, आई थिंक सो द आंसर विल कम व्हाटएवर, देख लेना आप लोग। ओके, ये आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड, मजा आएगा। कैन आई से एट दिस इंस्टेंट, एट दिस पॉइंट इट इज परफॉर्मिंग व्हाट? यार बोलो Pure बोलो, rotation. प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर अबाउट दिस पॉइंट। कैन आई से काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल about that point, about not center, is half I omega square. Hello, 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 hello. What is I? गौतम I के बारे में बताओ, I क्या रहेगा? ml square by 12 plus Plus mass M into into distance mass. square. अरे भाई उधर ट्रांसफर करना है वो पॉइंट पर, क्योंकि वो पॉइंट पर रोटेट कर रहा है। हेलो 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 हेलो, अरे भाई इधर से मैंने ट्रांसफर किया ना, ये एक्सिस से इधर तक ट्रांसफर करना पड़ेगा ना, इनटू ओमेगा स्क्वायर tan स्क्वायर। हेलो बोलो, Yes, sir. ये वैल्यू ढूंढ लेना, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो इस सम को। ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स में भी है, वही सॉल्व्ड एग्जांपल है, ये चीज है। क्लियर है? ओके, उस सॉल्व्ड एग्जांपल में थीटा वीटा दिया था, थीटा 37 पर आएगा तो क्या होगा। तो अगर आप ये मेथड फॉलो करेंगे ना इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का, तो आपको ओमेगा के प्रॉब्लम में नहीं फंसना पड़ेगा। ओमेगा से वो जो अल्फा और 90 माइनस अल्फा के बारे में बात किया था ना गौतम ने, गौतम, तो उससे सिर्फ ओमेगा मिलेगा ना आपको बेटा। हेलो हेलो, आर यू गेटिंग इट? So we can find other things also. यू कैन फाइंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। वीसीएम कैसे ढूंढेंगे? The VCM along the rod will be that value that you found, and then you have the value of omega, and you ओमेगा use ऑल्सो, the हाँ, same formula. you have to use that formula again. Yes, that is correct, that you can do. Fine, सही है, वेरी गुड, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आता है। क्वेश्चन नंबर 8, अब मजा आएगा, बहुत अच्छा समय। देखो इधर, इट इज ओनली रेपिटेशन ऑफ व्हाटएवर वी आर डूइंग नाउ। देखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बॉल ऑफ रेडियस आर, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द ज्योमेट्रिक सेंटर इज r/2। रेडियस ऑफ गायरेशन इज r/2 मतलब k is r/2 अबाउट द सेंटर, मतलब kc is r/2। हेलो, is kept on a frictionless surface. The geometric center coincides with the center of mass. The ball is struck horizontally with an impulse j. The point of application of the impulse is height h above the surface. Then देखो मेरी बात सुनो, एक नॉन यूनिफॉर्म बॉल है, ज्योमेट्रिक सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास सेम जगह पर है। ओके, एंड कैन आई से द it is struck with a sharp impulse. The point of application is about this much. Fine, यहाँ पर हमने J लगा दिया, ऐसे Q बॉल से हिट किया। So the point of application of impulse is height h above the surface. Height h above the surface. तो ये height h है जहाँ पर हम लोग हिट कर रहे हैं, सही है। तो from the center it is what? क्या भाई, ये कितना रहेगा? ये कितना रहेगा यार? ये R है ना बेटा? H minus R. ये क्लियर हो गया, h माइनस r है, और यहाँ से हमने एक इम्पल्स दिया उसको। ओके, अब हम लोग इसके कंडीशन को ओबे करके देखते हैं। ये सेकेंड लाइन थर्ड लाइन में क्या बोल रहा है? बॉल विल रोल प्योरली। व्हाट इज द रोलिंग कंडीशन व्हेन यू अप्लाई एन इम्पल्स? हेलो, सुना है क्या? VCM equal to R omega. VCM is R ओमेगा। VCM याद है, इज J by M। हेलो, ये कर चुके हैं हम लोग सम। Yes, sir. डोंट टेल मी प्लीज। ओमेगा क्या है? चलो बोलो, आप लोग को याद होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, मैंने इंट्रोडक्टरी में सिखाया है भाई, ऐसे मत करो। यस और नो?
Yes, sir. It is there. Please. ये जे तो वैसे ही कैंसिल हो गया because it is independent of J. 1 by M. R. R perpendicular is H minus R. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? M K स्क्वायर रहेगा. M K स्क्वायर ना. M Yes, sir. K स्क्वायर. K कितना है? R by 2 है देखो. तो ये हो जाएगा R स्क्वायर by 4. ये कितना होता है यार? Yes or no? H should be 5 by 4R. पॉसिबल है H is 5 by 4R? मतलब सेंटर से कितना डिस्टेंस है? लो यार तुम लोग R by 4. 1 by 4R ना. कैन आई से ये डिस्टेंस जो है ये 1/4 R है. चलेगा ना भाई? पॉसिबल है कि नहीं है? तो Yes, अगर sir. आप एक इंपल्स देंगे 1/4 R पर तो बॉल रोल करेगा. तो बॉल विल रोल प्योरली इफ H is 5 by 4R. 3 by 2R नहीं है. The ball will slip on the surface for all cases. ये भी पॉसिबल नहीं है. There will be no rotation if H is equal to R. बोलो सही है ना? Yes, sir. Last point Yes, sir. बोल रहा है कि where are you striking बेटा? पूरा was replied finally. पूरा कहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं? H is R मतलब क्या? Where striking? Hello. H is R मतलब क्या? You are striking How में is Center. 0? एंटर ना. तो Yes, sir. टॉक तो बनेगा ही नहीं ना. Yes, टॉक sir. तो बनेगा ही नहीं बिकॉज ओमेगा का जनरल फॉर्मूला इज J into R परपेंडिकुलर एंड R परपेंडिकुलर इज 0. यस और नो? हेलो. तो ओमेगा तो बनेगा ही नहीं. ओमेगा बनेगा नहीं तो वो घूमने वाला नहीं है. हेलो हेलो हेलो. क्लियर है? Yes, sir. फाइन फाइन फाइन. आगे बढ़ेंगे. आगे बढ़ेंगे सर. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 पर आता है. क्वेश्चन नंबर 10. A uniform disk of mass m and radius r rotates with a fixed axis passing through its center and angular velocity omega. Okay. A particle of mass m having velocity 2 omega r towards the center of the disk collides with the disk and moves horizontally and sticks to it. मतलब क्या हो रहा था कि एक डिस्क था वो सपोज स्टार्ट में ओमेगा से घूम रहा था. इसका मास m है. रेडियस आर है. वो तो अंडरस्टूड है. ठीक है. अभी क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल ऑफ मास m है. उसके पास वेलोसिटी जो है वो 2 ओमेगा आ रहा है और वो आ रहा है खट 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 कर सेंटर की तरफ जा रहा है. सेंटर की तरफ जा रहा है और जाकर आके इधर चिपक गया. इधर चिपक गया. हेलो 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 हेलो. यस और नो? यस और नो बाबा? हेलो. Yes, sir. तो जब ये आके चिपक गया, जब ये पार्टिकल आके चिपक गया तो कैन आई से इसका इनिशियल मोमेंटम ऐसे था. कैन आई से फाइनल मोमेंटम ऐसे हो जाएगा. हेलो. नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर. आई डोंट अंडरस्टैंड ओनली. भाई वो चिपक जाएगा तो कुछ डिस्क के साथ में चलेगा ना. तो डिस्क के साथ में उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी रहेगा कि नहीं रहेगा? हेलो. Yes, sir. अब अगर आप आंसर की तरफ देखते हो तो आंसर के बारे में आपको पूछ रहा है कि भाई इंपल्स कितना लगा. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर इंपल्स? आपको याद है ना? इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इंपल्स इज फाइनल मोमेंटम. यस और नो? हेलो. Yes, sir. ये एक चीज है. दूसरा हमको जब ये चिपक गया तो उसका ओमेगा डैश निकालना पड़ेगा. ओमेगा डैश आपको निकालना पड़ेगा. तो कैन आई से दिस इज इनिशियल केस व्हेन इट इज रोटेटिंग. व्हेन इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा and this guy is coming with v. This is case 1, initial case. फाइनल केस में जब ये आगे चिपक जाएगा, इधर आके ये चिपक जाएगा तो ये बन जाएगा ओमेगा डैश. आर यू गेटिंग इट ना?
ओमेगा डैश निकालना. हाउ टू फाइंड ओमेगा डैश? You know it, huh? You know it. Conserve angular momentum about the new center of mass. See now, can I say net external torque is 0? Hello? Yes or no? Hello, hello, hello. Yes or no? Clear hai? Fine. Now, can I say I1 omega 1 is equal to I2 omega 2? You can conserve momentum anywhere, Gautam. Hello? New center of mass. You can conserve momentum at the center also, na? Hello? गौतम समझ में आ रहा है क्या? So previously we had solved a हाँ sum like वो this. सम स्टिक का सम था वो स्टिक वाला रॉड का Oh yeah, got it. बराबर है ना. तो उसमें थोड़ा सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि अभी इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी, बट हम लोग क्या जनरली एट द सेंटर ही कंजर्व करते हैं, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है. आपकी बात सही है, आप अगर वो स्टिक भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. I1 कितना है इनिशियली? I1 omega 1. Yeah, I can say initial momentum is final. I1 omega 1 is I2 omega 2 की जगह can I say L initial is equal to L final. And about center बोल रहा हूँ मैं, about center. तो पार्टिकल का मोमेंटम हमेशा पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना है? mvr अबाउट द सेंटर, बट mvr अबाउट द सेंटर 0 है ना. हेलो 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 Yes, sir. हेलो, वो सेंटर पे ही है ना यार. वो अगर अगर रिम पर होता, अगर साइड में होता किधर, तो mvr लिखता मैं. अरे भाई अगर वो इधर चलता है ऐसे, तो भाई mvr लिखता कि नहीं लिखता? हेलो, ये यार ये डायग्राम खराब हो जाएगा. यस और नो? बट ये mvr 0 है. प्लस कैन आई से आई ओमेगा आई डिस्क का आई कितना होता है? हाफ mr स्क्वायर into omega. Are you getting it? Final angular momentum will become I into omega dash, but I will be new I into omega dash. Are you getting it बेटा? ये तो जीरो हो गया, ये बना हाफ mr स्क्वायर into omega I नेट. क्या बनेगा? न्यू क्या बनेगा? न्यू क्या बनेगा? इसका खुद का होगा हाफ mr स्क्वायर प्लस पार्टिकल का मोमेंटम इनर्शिया अबाउट द रिम रहेगा mr स्क्वायर into omega dash. हेलो, are you understanding? हेलो. Yes, sir. ये ओमेगा डैश क्या हो गया यार? देखो ना, ये 3/2 हो गया, ये 3/2, तो ये 3 हो जाएगा ना, ओमेगा बाई 3 हो जाएगा. यस और नो? तो अंडरस्टूड है. मतलब ओमेगा जो है वो 1/3 हो गया, पहले का 1/3 हो गया, क्योंकि पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया. अब मजा आने वाला है. ठीक है, अब ये तो ठीक है, ये ओमेगा डैश मिल गया मेरे को. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम? बाबा पार्टिकल का इनिशियल आपको पूछा, एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया? चलो ये ओमेगा बाई 3 मार्क कर लिया, सेकंड वाला रॉन्ग हो गया. सही है ना? मैंने आपको बताया था मल्टीपल चॉइस में हर एक सम को एक एक सम की तरह पकड़ो. हेलो. Yes, sir. इंपल्स द पार्टिकल, इंपल्स ढूंढना है तो चेंज इन मोमेंटम करना पड़ेगा, बट यहाँ पर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है दोनों का अलग है. अरे भाई यस और नो? सपोज दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, चलेगा क्या? तो इनिशियल मोमेंटम कौन से डायरेक्शन में है? हेलो, यस और नो? यस और नो? आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? mv, बट v क्या रहेगा उसका? इस पॉइंट का v Omega क्या होता है? dash into R. ओमेगा डैश इनटू आर, क्योंकि ओमेगा डैश हो चुका है भाई. हेलो, ये इधर की बात कर रहा हूं मैं. आर यू गेटिंग इट ना? यहां से रब कर देता हूं, कंफ्यूजन हो जाएगा. गेटिंग इट? तो ये p फाइनल मिल गया. m ओमेगा डैश इज ओमेगा बाई 3 into r is r. yes or no? into which cap बाबा? I cap. I सही है cap. ना? अभी j क्या होता है? j P final minus P initial. वेक्टर फॉर्मेट है. मतलब अगर एक आए है जे के, दोनों का डिफरेंस निकालने का, तो रूट ऑफ पहले वाले स्क्वायर एंड सेकंड वाले स्क्वायर. यस और नो? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना. Yes, sir. तो ये हो जाएगा
m2 omega r the whole square plus m omega r by 3 the whole square. सही है क्या? सही है भाई? कितना आता है देखो जरा. 3 square 9, 4 is 36, 36, 37, C. 37, 37 C आ जाएगा. yes or no? हेलो, क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को? हेलो. Yes, sir. हाँ, बाकी ग्रेविटेशन में कोई दम नहीं है. सिंपल हार्मोनिक मोशन मान लो, इजी है वो भी. ओके, ठीक है. So we'll do this and we'll come to the चलो 13th question. A uniform rod EB of length 7 meters undergoing combined rotational and translational motion such that at some instant of time velocity at end A and center is 3 is both perpendicular to the rod in opposite direction having magnitude 11 and 3. As shown, the velocity of C, if the velocity of C and angular velocity of the rod remain constant. Okay, sir. चलो फाइन. सबसे पहले एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है पॉइंट ए, and acceleration of point B के बारे में पूछा है. At the instant find the acceleration of point B is more than that of a angular velocity of the rod is 4. Okay, angular velocity ढूंढने के लिए क्या करने का? Can I say ये रॉड को अगर मैं, सुना मेरी बात, आसान है. ये सेंटर ऑफ मास है और ये पॉइंट ए है. पॉइंट ए के पास ऑलरेडी कितना है? 11 है. सही है. इसके पास कितना है? 3 मीटर पर सेकंड है. सेंटर ऑफ मास को मैं रोक देता हूं. सेंटर ऑफ मास को मैं चिपका देता हूं. कैन आई कंसीडर दिस टू बी अ ट्रेस? तो इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे दो. हेलो हेलो, आर यू गेटिंग इट? आर Yes. यू गेटिंग इट? बाबा कुछ नहीं है. तो ओमेगा क्या होगा अभी? ओमेगा अबाउट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा? 4 radian per second. ओमेगा ये हो जाएगा. ओमेगा विल बिकम v परपेंडिकुलर बाय r, दैट इज 14 बाय कितना है? आधा हो जाएगा ना भाई, 3.5. यस और नो? हेलो, 4 रेडियन पर सेकेंड. दिस इज करेक्ट. एक बार, क्योंकि ओमेगा ढूंढना पड़ेगा, ओमेगा बिना आपको काम नहीं होगा. एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए. अच्छा, पॉइंट ए कौन से मोशन में जा रहा है बाबा? हेलो, पॉइंट ए कौन से मोशन में जा Circular. रहा है? सर्कुलर. तो उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एंड यूसीएम है, क्योंकि ये बोल रहा है ये कांस्टेंट है. देखो, तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है इसके पास? V square by R. Are you there? Are you all there with me? Yes or no? क्लियर है? कितना होगा? आर कितना है? 3.5 है ना? हेलो, कितना होगा? 56. ये भी मिल गया. पॉइंट बी. पॉइंट बी के बारे में क्या ख्याल है? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी. यस सर. अगर Same. ओमेगा कांस्टेंट है, अगर ओमेगा कांस्टेंट है और ये पॉइंट रेस्ट पर है, तो अगर ये इधर से जा रहा है तो ये भी तो दूरी वही है ना. तो ही विल आल्सो गो विद v is r omega or not, and his acceleration will also be v square by r or not. हेलो Yes, हेलो sir. हेलो हेलो, तो सेम ही रहेगा ना यार. एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विल आल्सो बी द सेम बिकॉज़ इन दोनों का दूरी सेम है. I hope you all are getting. हेलो हेलो, क्या बोल रहे हो यार? लास्ट क्वेश्चन. फोर्टीन क्वेश्चन. फिर कॉम्प्रिहेंशन एंड मैच द कॉलम नेक्स्ट टाइम करेंगे और उसके बाद में सब्जेक्टिव करके खत्म कर देंगे. ठीक है ना? An object of mass m is tied to a light string wound around a pulley.
that has moment of inertia I and radius r. The wheel bearing is frictionless and the string doesn't slip on the rim. मतलब जो पॉइंट वेलोसिटी जो स्ट्रिंग का है वही वेलोसिटी पुली का भी होना चाहिए. हमने किया है ना थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन लास्ट टाइम किया था हम लोग ने. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है मास m का और ये इधर है, ऐसे किया जा रहा है and it is sleeping on the pulley. ऐसे कुछ है. सही है क्या? हेलो हेलो भाई, हेलो, यस और नो? Yes, sir. आपको पूछ रहा है टेंशन कितना रहेगा स्ट्रिंग में, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है. कुछ भी दम नहीं है, सिंपल है एकदम. कैन आई से t इनटू r. ये t है ना, ये mg है. तो अगर मैं इसका fbd बनाता हूँ, कैन आई से एक्सेलरेशन a से नीचे जाएगा. बोलो इसका इक्वेशन लिख के बताओ. ब्लॉक का इक्वेशन लिखो. mg minus t equal to ma. सेकंड टॉर्क इक्वेशन क्या रहेगा? पुली का टॉर्क इक्वेशन क्या रहेगा? हेलो, t इंटू आर. अरे भाई t इंटू आर देखो ना, पुली को देखो ना खाली. हेलो, लुक एट द पुली मैन. हेलो, t इंटू आर इज i इंटू अल्फा, i इंटू अल्फा. यस और नो? Yes, sir. और यहां पर तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? देयर इज नो स्लिपिंग. देयर इज नो स्लिपिंग मतलब क्या? ये जो रस्सी है जो एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है और ये जो पॉइंट है जो आर अल्फा से घूम रहा है, कैन आई से ये दोनों सेम होना चाहिए? हेलो, क्या मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूं आप लोग को? दोनों का रिलेटिव मोशन नहीं है ना दोनों के बीच में. कैन आई से दिस ए ऑफ द स्ट्रिंग should become equal to a of the pulley at that rim. हेलो, क्या लिखा मैंने, समझा? Yes, sir. लिखा? ये समझा आप लोग को? भाई पीछे भी हमने वो फिरकी वाला सम किया था लास्ट टाइम, आपको याद आ रहा है? वही सेम था ना? हेलो, आई डोंट नो. आर अल्फा क्लियर है? Yes, sir. इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 मिल जाएगा यार. ओके, ये क्या मैं इसको 2 में डाल सकता हूँ? तो ये मिलेगा t इंटू आर इज आई इंटू अल्फा. अल्फा को लिख सकते हैं a बाय आर. कैन आई से t विल बिकम i a बाय आर स्क्वायर. तो ये हो जाएगा t विल बिकम, सही है? अब इसको इधर डाल दो तो ये हो जाएगा mg माइनस टी. टी को लिख सकते हैं i a बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू a. हेलो 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 हेलो, यस और नो? तो a क्या हो जाएगा? नहीं बता रहे हो यार. a क्या हो जाएगा बोलो? a विल बिकम mg अपॉन m प्लस i बाय आर स्क्वायर. हेलो, यू रिमेम्बर? हेलो हेलो, सही है क्या? सही है ना? हेलो, 1 प्लस आएगा, क्या आएगा? m प्लस i बाय आर स्क्वायर. गेटिंग इट? So that is IA or i a. okay, got it. a is the acceleration, alpha is a by r. Yes, sir. Yes, sir. Got it. अच्छा, ये किसी को याद आ रहा है? कल मैंने कुछ बोला था सुबह सुबह में, तुम लोग सुनते हो कि नहीं? SHM. SHM में मैंने आपको कहा था कोई भी घूमने वाली चीज रहेगी तो m के साथ में i बाय आर स्क्वायर आएगा. अरे देखो यार नीचे देखो. हेलो, Yes, sir. मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था, इतना बड़ा सम किया था, फिर आप लोगों ने बोला था भाई क्या है ये सब है. तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, m प्लस i बाय आर स्क्वायर सीधा ऐड कर दो. हेलो, याद आ रहा है? तो जब भी घूमने वाली चीज होती है ना बेटा, तो m के साथ में m प्लस i बाय आर स्क्वायर आ जाता है. गेटिंग इट? गेटिंग इट? Yes, sir. हाँ. ओके, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये सब क्या रिलेटेड है पूरा, तो आपको समझ में आ जाएगा. क्या आंसर क्या है इधर? एक्सेलरेशन क्या रहेगा? mg अपॉन
क्या हो रहा है यार, ये क्या है? mg तो mm उड़ा दो ना, mm उड़ा दो, ये तो g plus 1 plus I by mr square आएगा. ये कुछ रॉन्ग है यहाँ पर. I will give you the result. The result will be a is equal to g upon क्या हो जाएगा 1 plus I by mr square. Hello, are you there? Are you there? Yes or no? Yes, sir. हाँ, ये मिल So गया. I by mr square is k square by r square, right? k square by r square, yes. याद है वो फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन पे g sin theta upon 1 plus k square by r square. Yes, sir. Yes, sir. sin थीटा तो 90 बन गया ना इधर. हेलो यार, तुम लोग बोलते बताते नहीं हो तुम लोग. हेलो, थीटा तो 90 बन गया है यार. ये तो 90 है ना, स्लोप थोड़ी है, 90 बन गया है. ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग. बहुत सारे मोड से हम लोग सोच सकते हैं इफ यू वांट टू डू. ओके, बिकॉज यहाँ पर चलने वाली भी चीज है और घूमने वाली भी चीज है. तो दिस इज लाइक प्योर रोलिंग. यू कैन इमेजिन दिस टू बी लाइक प्योर रोलिंग. हेलो, कुछ समझा क्या क्या बोला मैंने? Yes, sir. हाँ, ये चीज है. अच्छा, टेंशन क्या रहेगा? टेंशन हम सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं ना भाई. टेंशन ये है ना, आई ए बाय आर स्क्वायर. तो आई इज, ये क्या है, ये है ना एम जी अपॉन एम प्लस आई बाय आर स्क्वायर. ये ए मिला इंटू आर स्क्वायर. क्लियर है? यहाँ से क्या हो जाएगा, आई को नीचे ले लो, ये हो जाएगा, आई और एम को बाहर निकाल दो. तो टेंशन का वैल्यू आपको आएगा एम जी अपॉन 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई. हेलो हेलो, समझा आपको क्या किया मैंने? इस आई को नीचे ले लिया. हेलो 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 हेलो, और डिवाइड मार दिया Sir. दोनों से. तो ये मिलेगा आपको आंसर. Okay, mg upon 1 plus mr square by I. So this is the answer. I hope you all have understood. सबा बोलो yes or no. Yes, sir. So this is how you do more than one correct options. Comprehension टाइप है ना, थोड़ा अच्छे वाले सम्स है, मतलब लंबे लंबे सम्स है, तो बराबर से सिखाना पड़ेगा. एंड मैथ्स द कॉलम में तो ऑल टाइम की तरह इजी रहता है मैथ्स द कॉलम. एंड देन वी कैन गो टू सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव में 2 लेक्चर मांगता है, तो आई विल बी टेकिंग 1 एक्स्ट्रा लेक्चर बिफोर वेकेशन ऑल्सो, सो दैट सब्जेक्टिव हमारा खत्म हो जाए तो रोटेशनल मोशन आप लोग वेकेशन के दौरान बराबर से फिर से एक बार प्रैक्टिस कर सको. याद रहे कि एडवांस के अंदर 2 चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, रोटेशनल मोशन. अगर ये दोनों भी करके जाते हैं तो आपको आ जाएगा. पूरा बुक 1 करने की भी जरूरत नहीं है, अपने आप आपको बुक 1 अपने आप आ जाएगा. हेलो, व्हाट एम So आई when स्पीकिंग? to when is our summer vacation finally? 15 to 25. हेलो, But Ram sir was saying that he has shortened it. नो नो, वी डिडंट शॉर्टन इट. आज ही बात हुई हम लोग की. बट वी विल नॉट गिव यू एनी वेकेशन आफ्टरवर्ड्स. अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग को क्या चाहिए. अभी 7 डेज चाहिए, बाद में 7 डेज चाहिए जब खुलेगा, या अभी पूरा 10 डेज का वेकेशन चाहिए? आप लोग बताओ मेरे को. 7 days. हाँ, तो एवरी अभी 7 डेज, बाद में 7 डेज, ऐसे बोल रहे हो आप? Yes, sir. तो खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा? दैट No, exams also. मतलब क्या है कि थोड़ा लूज हो जाएगा. खुलेगा तो नहीं खुलेगा, बट लूज तो हो जाएगा ना. अभी बीच में क्या लूज हुआ था ना थोड़ा. हेलो, Yes, you all can go to Mahabaleshwar, you all can go to Lonavala, you all can go somewhere else. बराबर है ना? Yes, sir. वो अगर आपको मांगता है तो you all message Ram sir also. तो I will put them in the meeting. तो जो भी डिसीजन सब लोगों का आता है उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे. क्या बोलते हैं? करेक्ट है ना? yes, sir. Actually, I was of the opinion कि भाई अभी 7 दिन, बाद में 7 दिन तो ज्यादा बेहतर होगा. आपको घूमने मिलेगा, मुझे भी घूमने मिलेगा. ठीक है? So because our exams are also there. When is the exams? Which exams? केसी का? So KCS के आप नाम के लिए देव के sir. हाँ, तो वो तो ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. या तो एक काम करो ना, 7 डेज मैं बोल देता हूँ सब लोगों को. 7 डेज अभी, 7 डेज बाद में. चलेगा Yes, ना? sir. दैट विल बी बेटर ओनली. ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट. मिलते हैं हम लोग कल सुबह में. बाय. Bye, sir. Bye, Thank sir. you. Thank you. Thank you, sir.